दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चैप्टर 11 में जो एक्सरसाइज 11.2 है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC in which VC equal to 7 centimeter and angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal to 13 centimeter. So how to construct a triangle according to the given construction? So let us start. Equal to 8 centimeter, angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal to 13 centimeter. Means in this chapter there are two processes, that is in which in one method some measurement of sum of two sides is given and the second method is measurement of difference of two sides is given. So here first method is where measurement of sum of two sides of triangle is given. So here AB plus AC, that is given that 13 centimeter. So how can you construct this type of triangle? So let us start the video. First of all, we will draw a line segment BC with measurement 8 centimeter with the help of scale. So first of all, we will take the scale and draw a line segment BC 8 centimeter. So let us, this is point B and this is point C. Okay, now what to do after that? Now you take the compass and take some convenient डिस्टेंस इन योर कंपास। अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए और फिर क्या करना है, प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास एट बी एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल विच यू सी इन द डायग्राम। इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। This semicircle intersect the BC at point let it is P. ये point P पर intersect कर रहा। Okay. Now we will place the pointer at P and mark a arc. As you see, this is 60 degree. Okay. After that, again let the name of this intersection point of this arc is Q and then place the pointer at Q and mark another arc which you see, this is, let us 60 degree. Again it means this is 120 degree, 60 degree and again 60 degree, then you will get it 120 degree. Now name of this intersection point let R. Okay. Now placing the pointer again at Q. Okay. And then mark an arc as you see, just like that. And again the placing the pointer at R, then intersect this point, this arc on the previous arc, you will get this same situation, that is two arc intersect at a point. This is you will get it as, yes,
So this angle is construct that is 90 degree. Now take the scale and join it with the help of scale. You can see that with the dotted line, because this angle is not required in the construction, but this is need to construct for the next process. So you can see that in the scale, that is, this is measurement just 90 degree. Okay, now you will join this by the dotted line. This is angle which you construct here. This is, that is 90 degree. Now this angle which you draw just now, mark an arrow jet here. Then you can say that this is ray, and the name of this ray is let us Bx. Okay, after that what to do? Our requirement to construct the angle 75 degree. So what to do for 75 degree? You can see that P and Q are making the angle 60 degree, and when you draw this ray Bx, then this Bx ray intersect the semicircle at a point. Name this point is S. Okay, this is the intersection point. So let us, this is S. Now this SQ is 30 degree, and if you draw the bisector of SQ, then you will get 15 degree, and 60 degree plus 15 degree you will get how much? 75 degrees. So you will proceed it next, प्लेसिंग द पॉइंटर एट क्यू. क्यू पर हम पॉइंटर को प्लेस करेंगे और एक आर्क इस तरह से मार्क करेंगे. आफ्टर दैट प्लेसिंग द पॉइंटर एट एस, एस पे रखेंगे और एक और इस तरह से हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. अब हम स्केल लेंगे और स्केल से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे. तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल 75 डिग्री. You can see that on the scale the measurement of the angle is given that 75 degree. So you will join it. This is angle 75 degree. Now you mark an arrow here. Then this is name of this ray as P by. After that what to do in the next step? Because the sum of two sides is given that 13 centimeter, so you will take the scale and compass and fill up the distance 13 centimeter. Means आपको क्या करना है, कंपास में 13 सेंटीमीटर को मेजर करना है और 13 सेंटीमीटर को मेजर करने के बाद प्लेसिंग द पॉइंटर एट बी. बी पर आप अपने पॉइंटर को प्लेस करेंगे और बी बाई में से 13 सेंटीमीटर कट कर लेंगे. लेट अस, दिस इज द आर्क इन द येलो कलर.
This is 13 centimeter. Okay, now name this intersection point as, let us, this is D. इसको हमने नाम D दे दिया. Okay, so after that this is point D. So D को अब हम क्या करेंगे, now take the scale once again and join this point D to C. इस पॉइंट को हम D को C से ज्वाइन कर देंगे. ध्यान रखना इस लाइन को भी हम डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे. Now after that what to do in next case, in next step, now you will draw the perpendicular bisector of this CD. CD का perpendicular bisector आपको ड्रॉ करना है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप CD का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे. मीन्स CD फुल डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिए और थोड़ा सा उसे कम कर दीजिए, या फिर क्या करेंगे, हाफ डिस्टेंस पहले इसमें से लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो वो मोर देन हाफ हो जाएगा. नाउ प्लेसिंग द पॉइंटर एट C पर हम पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क इस तरह से मार्क करेंगे. ये आप देख सकते हैं. इसी तरह से एक हम आर्क C पर ही रख के प्लेसिंग द पॉइंटर एट C हम S के पास भी मार्क करेंगे. ओके, C से प्लेसिंग द पॉइंटर एट C you will mark two arc. As you see first one is just top of C के राइट में, और इसके बाद में यहाँ पे S के नीचे एक आप आर्क को मार्क करेंगे. कंपास का पोजीशन कहाँ पे होगा, C पर. आफ्टर दैट नाउ प्लेसिंग द पॉइंटर एट D. अब हम अपने कंपास के पॉइंटर को D पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से इसी आर्क के ऊपर मार्क करेंगे, और इधर भी जो हमने फर्स्ट सेकंड आर्क यहाँ पे मार्क किया था S के पास, उस पर भी एक आर्क मार्क करेंगे. ठीक है, तो ये प्रीवियस आर्क को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. अब क्या करेंगे, अगेन यू विल टेक द स्केल एंड ज्वाइन दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट. नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट you will get a intersection point on the BY, otherwise on the line segment BD. आप देखेंगे कि ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये BD लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसका नाम हम लिखेंगे, लेट अस इट इज A. इसी का नाम हम A लिखेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर BD पे आया है. After that take the scale and join this A to C. A और C को हम join कर देंगे. Then you will get a required triangle that is triangle ABC, in which you can see that AB plus AC equal to 13 centimeter. So you can write for it, thus the required
required triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter, angle B equal to 75 degree, and AB plus AC equal to 13 centimeter. So this is the required construction. Now you can check your answer also. You can measure AB equal to how much and then AC equal to with the help of scale, and you will get here in all cases AB plus AC दोनों का सम आपको जो मिलने वाला है वो 13 सेंटीमीटर ही मिलेगा. सो अगर आपका ये 13 सेंटीमीटर है, इट मीन्स यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए करेक्ट ट्राइंगल just given in the question. So this is the required construction. Okay, so thank you. That is, construct a triangle ABC in which BC equal to 8 centimeter and angle B equal to 45 degree and AB minus AC equal to 3.5 centimeter. So how to construct this type of triangle? So once again enjoy the construction. 5 degree, BC equal to 7 centimeter and AB minus AC equal to 3.5 centimeter. So in this exercise only have two process. One is in which sum of two sides is given, and second one is difference of two sides is given. Okay, and other things are common, means one angle is given and measurement of one side is also given. So how can you construct this triangle? So let us start. So first of all we will draw a line segment, that is BC equal to how much 7 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि BC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. 7, only 7. So let us, this is 7 centimeter. The name of this segment is B and C. Okay, after that what to do? Now we will construct angle 45 degree on the point B. B पर हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे? टेक कन्वीनियंट डिस्टेंस इन योर कंपास. अपनी सुविधाजनक डिस्टेंस कंपास में भर लीजिए और अपने कंपास के पॉइंटर को B पर रखिए. हमने इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब क्या करना है? आफ्टर दैट लेट अस दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज, हमने इसका नाम लिखा BC को जो ये सेमी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम लिखा L. ओके, अब हम क्या करेंगे? कंपास के पॉइंटर को L पे रखेंगे और एक आर्क इसी सेमी सर्कल पर और लगाएंगे. ये इस तरह से आपका होगा. ये आपका आर्क होगा 60 डिग्री का. इसका नाम हमने लिख दिया M. ओके, इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क इज M. अब हम कंपास के पॉइंटर को M पर फिर से रखेंगे और एक आर्क और लगा देंगे. ये आर्क आपका होगा, इसका नाम लिख दिया हमने N. ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री का. ठीक है, बट आवर रिक्वायरमेंट इज टू कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो प्रोसेस हैं. एक तो हम 30 डिग्री का एंगल बना लें और फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, और दूसरा है 90 डिग्री का एंगल बना के उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें.
तो 90 डिग्री का एंगल बनाना इजी रहेगा, उसका बाइसेक्टर भी इजी रहेगा, तो यही कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को एम पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और फिर एन पर रख के दूसरा आर्क इस तरह से लगा लेंगे और स्केल लेकर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को बी से ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखिएगा ये एंगल हमारे स्केल पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री शो कर रहा है। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एरो दे दिया, इसका नाम हम दे देते हैं x। जो BX रे है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है और जो BX रे है उसने आपके सेमी सर्कल को के पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसका नाम हमने लिख दिया K। ओके, ध्यान दीजिए, इसका नाम हमने K लिख दिया, दिस इज द पॉइंट K। अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास के पॉइंटर को K पर रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि वो सेमी सर्कल इस तरह से, मीन्स मैंने क्या बताया, प्लेसिंग द पॉइंटर एट K एंड मार्क एन आर्क विच यू सी जस्ट लाइक दैट। इस तरह से हमने एक आर्क लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से L पर अपने कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क इसी आर्क के ऊपर और मार्क करेंगे। तो ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, स्केल से इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम आर्क को थोड़ा सा चेंज करेंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे से मैच हो जाए। फोर्टी 45 डिग्री के एंगल के लिए हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और हमने इसे ज्वाइन कर लिया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे हम इस तरह से एरो लगा लेंगे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम हम दे देते हैं Y। तो ये BY जो लाइन सेगमेंट, BY जो आपका रे है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो हमने कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, इसके बाद में क्या करना है, अब आपको दिया हुआ है AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब आप अपने कंपास में 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे और जब 3.5 सेंटीमीटर आप मेजर कर लेंगे तो आप अपने पॉइंटर को B पर रखेंगे, प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास एट B एंड मार्क ए आर्क विच यू सी जस्ट इन द रेड कलर। इस तरह से आप यहाँ पे एक आर्क मार्क करेंगे जो 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप इस रेड आर्क को स्केल की हेल्प से C से ज्वाइन करेंगे और जब आप इसे C से ज्वाइन करेंगे तो आप इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अवर रिक्वायरमेंट। तो हम इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट टू डू इन नेक्स्ट केस, जस्ट ए मोमेंट, आई वांट टू ड्रॉ इट with any other color। हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, तो हमने ये कलर आपका ब्लैक ही लेते हैं।
डॉट 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 करके इसे ज्वाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट टू डू, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, जो MCM जो लाइन सेगमेंट है, ये CM नहीं है, इसका हम नाम अलग से देना पड़ेगा। इसका नाम हमने लिखा, जो ये रेड कलर से इंटरसेक्शन हुआ है इसका नाम हम लिख लेते हैं D। ओके, सो दिस इज द पॉइंट D। अब DC का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ CD का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में फिलअप करेंगे और अपने कंपास के पॉइंटर को C पर एक बार रखकर इस तरह से आर्क लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, और इसके नीचे भी इसी तरह से हम आर्क लगाएंगे। उसके बाद फिर आप कंपास के पॉइंटर को D पर रखेंगे और एक आर्क इस तरह से लगा देंगे, और इसके नीचे जो आपने आर्क लगाया था उस पर भी इसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा इस तरह से। अब आप स्केल लेंगे और स्केल से इसे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके ये जो लाइन आपका होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपका होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका होगा, ये CD लाइन सेगमेंट को टू इक्वल CD लाइन सेगमेंट को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, जस्ट ए मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा C पर रखेंगे तो ये आर्क आएगा, D पे रखेंगे तो ये आर्क आएगा। और आप इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे, स्केल से जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास नहीं हो रही है, तो एक बार और इसे सेट करेंगे। और आप इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, लेकिन जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तो हम इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो आपने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BCD का ड्रॉ किया है, ये आपकी ग्रीन लाइन मीन्स BY रे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम आप रखेंगे A, ये आपका पॉइंट A होगा। उसके बाद फिर आप स्केल लेंगे और स्केल से पॉइंट C को और A को ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट C और A को ज्वाइन करना है तो आप फुल लेंथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका ABC एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, इन विच
आप देख सकते हैं इसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें thus the required triangle ABC in which BC equal to 7 centimeter, angle B equal to 45 degree and AB minus AC equal to 3.5 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि अगर आप AB का मेजरमेंट पता करेंगे, AB का मेजरमेंट कितना है और BC का मेजरमेंट कितना है, दोनों का वैल्यू आप AB और AC, BC नहीं AC, और उसके बाद आप AB माइनस AC फाइंड करेंगे तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो सही है या गलत है। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपने सिमेट्री पाई। क्या सिमेट्री थी कि आपको जो मेजरमेंट दिया हुआ था उस मेजरमेंट पे आपने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करने के बाद दोनों बार ही आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी इनिशियल रे को जहां भी इंटरसेक्ट करता था वहां से आपको पॉइंट ए मिला, जबकि BC पहले ही दिया हुआ होता था। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिए। सो डियर, हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।